speak like a pro. We have a dream to be a confident English speaker. But you know what? We can never be a confident English speaker until and unless we speak in a right way. And now the question arises, sir, what is the right method to practice? What is the exact way through which we can start speaking and we can improve our speaking skill? So let me tell you, the best way is only practice. This time we are just going to practice interrogative sentences. I will be asking you interrogative sentences, and you guys have to reply and answer with me. What we are learning? We are learning interrogative sentences. मैं आज आपको interrogative sentences में टेंसेस के, मॉडल वर्ब्स के, टू बी के, टू हैव के, टू हैव बीन और टू हैव हैड के सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. पढ़ा नहीं रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. लेट मी टेल यू वंस अगेन. आप केयरफुली सुनिएगा, बस मेरे साथ बोलिएगा. बस मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई डोंट वांट एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू स्पीक विथ मी. क्योंकि जो प्रैक्टिस हम करने वाला है, दिस इज कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग यार. इट विल हेल्प यू लॉट इफ यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू स्पीक विथ मी. Trust me, you will surely improve yourself. Now see, the first, let's talk about the to be first. This is verb of to be and this is verb of to have. Okay, in first to be, we will start the sentence from is, am, are and then subject and then object. In the past, we will use was and were and subject and then object. In future, we'll start from will, then subject and then be plus object. क्या आप एक डॉक्टर हैं? क्या आप एक डॉक्टर हैं? तो क्या आप आर यू अ डॉक्टर? क्या आपके पास एक कार है? Do you have a car? Come on, everybody has to speak. सुनने से काम नहीं चलेगा. Listening will not work. You have to speak with me. Do you have a car? क्या रवि के पास कार है? Does Ravi have a car? क्या आपके पापा के पास कार है? Does your father have a car? क्या आपके पापा के पास एक पुरानी कार थी? Did your father have an old car? क्या आपके पापा के पास एक पुरानी कार होगी? Will your father have an old car? Will your father have an old car? क्या आपके पास नॉलेज है? Do you have knowledge? क्या आपके पास नॉलेज था? Did you have knowledge? और क्या आपके पास नॉलेज होगा? Will you have knowledge? So this is the way to work. इसी आधार पर आप देखेंगे तो ये है आपका to have been. ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप 2 साल से यहां हैं? Have you been here for 2 years? Come on, have you been here for 2 years? Past में क्या आप 2 साल से यहां थे? Had you been here for 2 years? और क्या आप 2 साल से यहां होंगे? Will you have been here for 2 years? Now you can see, क्या आप 2 साल से बिजी हैं? Have you been busy for 2 years? क्या रवि आपका बचपन से ही दोस्त है? Has Ravi been your friend since childhood? एक बार बोलो सभी मेरे साथ. Has Ravi been your friend since childhood? क्या रवि आपका फ्रेंड बचपन से ही था? Had Ravi been your friend since childhood? और क्या रवि आपका फ्रेंड बचपन से ही होगा? Will Ravi have been your friend since childhood? So this is the way to work. To have had, the next that we have is to have had. In to have had, what happened? We just start the sentence with to has have and then subject, and then here on the place of been we have to use had and then object since oblique for plus time. Okay, in the last we have to use the question mark. Had subject plus had, 2 times had we are using. That doesn't mean कि ये गलती से हुआ है, ये deliberately हो रहा है. ये had has वाला है और ये had जो यहाँ पर लगता है वो वाला. Object plus since oblique for plus time. In future we have to use will, subject plus have and then had plus object since oblique for plus time. Okay, now what you have to do, मैंने कहा क्या ये कार आपके पास 2 साल से है? Have you had this car for 2 years? क्या ये सेलफोन आपके पास 2 महीने से है? Have you had this cell phone for 2 months? क्या आप बचपन से ही इंदौर में है? Have you been in Indore for have you been in Indore since childhood? Have you been in Indore since childhood? क्या आपके पापा बचपन से ही, क्या आपके पापा बचपन से ही इस शहर में हैं? क्या कहोगे? Has your father been here since childhood? क्या आप बचपन से ही इस शहर में हो? Have you been, come on,
हैव यू बीन इन द सिटी सिंस चाइल्डहुड, क्या बचपन से ही इस शहर में थे? हैड यू बीन इन दिस सिटी सिंस चाइल्डहुड, क्या बचपन से ही इस शहर में होंगे? विल यू हैव बीन इन दिस सिटी सिंस चाइल्डहुड, यू नो. द नेक्स्ट वी हैव, क्या ये कार आपके पास 2 साल से है? हैव यू हैड दिस कार फॉर 2 years, क्या ये कार आपके पास 2 साल से थी? हैड यू हैड दिस कार फॉर 2 years, एंड क्या ये कार आपके पास 2 साल से होगी? विल यू हैव हैड दिस कार फॉर 2 years, विल यू हैव हैड दिस कार फॉर 2 years. क्या आपके पास नॉलेज है? कम ऑन, क्या आपके पास नॉलेज है? डू यू हैव नॉलेज, डू यू हैव नॉलेज. क्या कल आपके पास समय था? डिड यू हैव टाइम यस्टरडे, क्या कल आपके पास समय होगा? होगा फ्यूचर के लिए. विल यू हैव टाइम टुमारो, डू यू हैव, डिड यू हैव, विल यू हैव, तीनों में हैव. ओके, क्या रवि के पास नॉलेज है? डज रवि हैव नॉलेज, क्या रवि के पास नॉलेज था? डिड रवि हैव नॉलेज, क्या रवि के पास नॉलेज होगा? विल रवि हैव नॉलेज. So this is the way to work. Do you have, did you have, will you have, do you have, did you have, will you have, do you have, did you have, will you have. This is the way to work. Okay, क्या आप एक डॉक्टर हैं? Are you a doctor? क्या आप एक डॉक्टर थे? Were you a doctor? क्या आप एक डॉक्टर होंगे? Will you be a doctor? Come on, will you be a doctor? Okay, क्या आप सुबह से बिजी हैं? Have you been busy since morning? क्या आप सुबह से बिजी थे? Had you been busy since morning? क्या आप सुबह से बिजी होंगे? Will you have been busy since morning? Will you have been busy since morning? क्या आप 2 साल से यहाँ हैं? Have you been here for 2 years? क्या आप 2 साल से यहाँ थे? Had you been here for 2 years? क्या आप 2 साल से यहाँ होंगे? Will you have been here for 2 years? So this is the way to work. Next, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा समझो कि क्या है. टू बी, टू हैव बीन और टू हैव हैड, ये हो गया आपका. इसके बाद में नेक्स्ट है आपका मॉडल वर्ब्स के केस में अगर आप देखें तो कैन, सब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, दूसरा है कुड, सब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट. तीसरा है आपका विल, सब्जेक्ट, बी एबल टू, V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट है शुड, सब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट. मस्ट, सब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट. दीज वन आप देख सकते हैं. क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं? कैन यू टीच इंग्लिश? क्या आप दौड़ सकते हैं? कैन यू रन? क्या आप सुन सकते हैं? कैन यू लिसन? क्या आप सुन सकते थे? कुड यू लिसन? क्या आप सुन पाओगे? विल यू बी एबल टू लिसन? क्या मुझे वहां जाना चाहिए? कम ऑन, क्या मुझे वहां जाना चाहिए? शुड आई गो देयर? क्या मुझे करना चाहिए? शुड आई डू इट? क्या मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए? शुड आई ट्राई इट वंस? शुड आई ट्राई इट वंस? मुझे लगता है आपको एक बार ही ट्राई करना चाहिए. आई थिंक यू शुड ट्राई इट वंस. देयर इज नथिंग रॉन्ग टू ट्राई इट वंस. आई थिंक यू शुड ट्राई इट वंस. मुझे लगता है आपको एक बार ही ट्राई करना चाहिए. मस्ट ट्राई इट वंस, क्या मुझे एक बार ही करना ही चाहिए? यू नो, ऐसे ही नेक्स्ट है आपका डू ऑब्लिक डज, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. क्या आपको बोलना पड़ता है? डू यू हैव टू स्पीक? क्या आपको पढ़ाना पड़ता है? डू यू हैव टू टीच? यू नो, क्या आपको पढ़ाना पड़ता था? डिड यू हैव टू टीच? डिड यू हैव टू टीच? और क्या आपको पढ़ाना पड़ेगा? विल यू हैव टू टीच? विल यू हैव टू टीच? क्या आपको बोलना पड़ेगा? विल यू हैव टू स्पीक? क्या आपको बोलना पड़ता है? डू यू हैव टू स्पीक? क्या आपको बोलना पड़ता था? डिड यू हैव टू स्पीक? और क्या आपको बोलना पड़ेगा? विल यू हैव टू स्पीक? क्या आप बोला करते थे? यूज्ड यू टू स्पीक? क्या मुझे बोलने की जरूरत है? डू आई नीड टू स्पीक? और क्या मुझ में बोलने की हिम्मत है? डेयर आई टू स्पीक? क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है? डू आई नीड टू गो देयर? नहीं, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है. नो, यू डोंट नीड टू गो देयर. आपको वेट करने की नीड नहीं है, आप जा सकते हैं. यू डोंट नीड टू वेट, यू कैन गो इफ़ यू वांट. यू नो, क्या आप पढ़ा सकते हो? कैन यू टीच? क्या आप इस काम को कर सकते हो? कैन यू डू दिस वर्क? क्या मुझे ये काम करना चाहिए? शुड आई डू दिस वर्क? क्या मुझे लिखना चाहिए? शुड आई राइट? क्या आपको लिखना पड़ता है? डू यू हैव टू राइट? क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है? कम ऑन, क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है? डू यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ा?
डिड यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा? विल आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? ओके. क्या आपको पढ़ाना पड़ता है? डू यू हैव टू टीच? क्या आपको पढ़ाना पड़ता था? डिड यू हैव टू टीच? क्या आपको पढ़ाना पड़ेगा? विल यू हैव टू टीच? क्या आप पढ़ाया करते थे? यूज्ड यू टू टीच? क्या मुझे पढ़ाने की जरूरत है? डू आई नीड टू टीच? यू नो. सो आप देख सकते हैं सारे के सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके सामने. अब मैं रैंडम सेंटेंस पूछ रहा हूं. क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू लर्न? क्या आपके पास समय है? डू यू हैव टाइम? क्या आपके पास इंग्लिश सीखने के लिए समय है? डू यू हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश? क्या आपके पास 2 दिन से समय है? हैव यू हैड टाइम फॉर 2 days? क्या आप 2 दिन से यहां हो? हैव यू बीन हियर फॉर 2 days? हाँ, मैं 2 दिन से यहां हूं. यस, आई हैव बीन हियर फॉर 2 days. क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो? कैन यू टीच इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो? अब जैसे पढ़ाते हो कहा मैंने, टेंस में आ जाओ. क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो? कम ऑन, एवरीबडी हैज टू स्पीक. क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो? डू यू टीच इंग्लिश? क्या आपने इंग्लिश पढ़ाई? डिड यू टीच इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ाओगे? क्या आप इंग्लिश पढ़ाओगे? विल यू टीच इंग्लिश? है ना. क्या आप इंग्लिश पढ़ाओगे? विल यू टीच इंग्लिश? द नेक्स्ट दैट वी हैव इज कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो? क्या कहेंगे बोलो? आर यू टीचिंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे? वर यू टीचिंग इंग्लिश? रहे थे. क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे? विल यू बी टीचिंग इंग्लिश? रहे होंगे. विल यू बी टीचिंग इंग्लिश? ओके. नेक्स्ट, परफेक्ट. क्या आप इंग्लिश पढ़ा चुके हो? हैव यू, कम ऑन. क्या आप इंग्लिश पढ़ा चुके हो? हैव यू टॉट इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ा चुके थे? हैड यू टॉट इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ा चुके होंगे? विल यू हैव टॉट इंग्लिश? क्या आप 2 दिन से इंग्लिश पढ़ा रहे हो? हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश? हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 days? क्या आप 2 दिन से इंग्लिश पढ़ा रहे थे? हैड यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 days? और क्या आप 2 दिन से इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे? विल यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 days? क्या आप मुझे जानते हो? डू यू नो मी? क्या आप दौड़ सकते हो? कैन यू रन? क्या ये आपका है? इज दिस योर्स? क्या आप सुन सकते हो? कैन यू लिसन? क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? क्या आप दौड़ने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू रन? क्या आप बोलने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू स्पीक? क्या आप बोल सकते हो? कैन यू स्पीक? क्या आप बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? क्या आपने खाना खा लिया है? कम ऑन. क्या आपने खाना खा लिया है? या क्या आप खाना खा चुके हो? हैव यू टन फूड? कम ऑन. क्या आपने खाना खा लिया है? हैव यू टन फूड? क्या आप 10th कंप्लीट कर चुके हो? हैव यू कंप्लीटेड योर 10th क्लास? हाँ, मैं अपनी 10th क्लास कंप्लीट कर चुका हूँ. येस, आई हैव कंप्लीटेड माई 10th क्लास. अगर इंग्लिश फास्ट सीखना है ना तो इंटरोगेटिव सेंटेंस पे कमांड कर लो. कोई मुझसे पूछे सर आई हैव टू लर्न इंग्लिश वेरी फास्ट, हाउ आई कैन लर्न? आई वुड से ओनली वन थिंग, start practicing interrogative sentence and see the magic. If you are able to speak interrogative sentences, if you are able to understand any interrogative sentence, you are able to translate it, you are able to speak it, you are able to explain it, you can communicate with anyone in English here. क्योंकि communication में है क्या? There is nothing. You just have to listen the things and reply. If I say, have you completed your graduation? Yes, sir, I have completed my graduation. Do you know about me? Yes, sir, I know about you. Where are you from? I'm from Indore. Do you live in Indore? Yes, I live in Indore. Are you learning English from Persona Institute? Yes, I'm learning English from Persona Institute. Anything that is being asked to you. मैंने कहा, have you had this car for 2 years? Yes, I have had this car for 2 years. Do you know about me? Yeah, I know about you. Who am I? You are my teacher.
What do I teach you? You teach me English. Anything, जो भी आपसे पूछा जा रहा है आप उसको confidently reply कर सकते हो, लेकिन कब? When you know the right method to answer it. If I say, do you know about me? Come on, answer it. Do you know about me? क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो आप कहेंगे yes, I know about you. Now this you will change into I. What I've asked you, do you know about me? Now the answer is yes, I know about you. You are my teacher. You teach me English. You are my teacher and you teach me English. Okay, आप मेरे टीचर है और आप मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं. So the first question is done now. Let's move on to the second. Have you completed your graduation? Now answer it. Tenses से पूछ रहा हूँ. Have you completed your graduation? Now everybody has to speak. क्या आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो? Yes, I have completed my graduation. I have completed my graduation and now I'm doing preparation for my masters. Now I'm doing my masters. Now I'm doing job. Anything that you're doing. And if you have not done, no sir, I have not completed my graduation. I'm undergraduate. I'm in 12th standard. From next year I will start doing preparation. From next year I will start doing my graduation. So that is the way. आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, just try to answer it. Are you listening to me? Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हो? Yes sir, I'm listening to you. And remember one thing, जिसमें क्वेश्चन पूछा, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा, उसी में आंसर बनता है. अगर मैंने आपसे पूछा Are you listening to me? This is from present continuous tense. आंसर भी इसी में आएगा. Yes, I'm listening to you. हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ. Come on. Are you listening to me? Yes, I'm listening to you. Am I your teacher? Am I your teacher? क्या मैं आपका टीचर हूं? क्या बोलोगे? Yes sir, you are my teacher. And mentor as well. And mentor as well. और साथ साथ mentor भी हो. So yes, you are my teacher and mentor as well. You know. Are you from Khandwa? Are you from Khandwa? क्या आप खंडवा से हो? क्या कहोगे? Yes, I am from Khandwa. Negative. No, I am not from Khandwa. Are you from Delhi? Yes, I am from Delhi. No, I am not from Delhi, I am from Pune. No, I am not from Delhi, I am from Pune. Just see how you are answering it. जब इस तरीके से, इस वे में आप इन चीज़ों को रिप्लाई करोगे, it would be easy for you to understand the things. चीज़ों को समझना, you know what, it's going to be easy for you all. आप सबके लिए बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा, convenient हो जाएगा ये सारी की सारी चीज़ें. ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी को कि आप लोग जो है इनके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें ना, तो इट वुड बी इजी फॉर यू. चलो मैंने आपसे पूछा कैन शी हेल्प मी इन दिस वर्क? कैन शी हेल्प मी इन दिस वर्क? क्या वो इस कार्य में मेरी मदद कर सकती है? अगर वो कर सकती तो आप क्या कहोगे? यस, शी कैन help you in this work. She is a brilliant artist. वो एक बहुत ही talented brilliant artist है. She can surely help you in this work. निश्चित ही वो आपकी मदद कर सकती है. She is a brilliant artist. Next, is there any vacant seat for me? क्या यहाँ कोई खाली जगह है मेरे लिए? Yeah, of course. Yes. There are many seats vacant here.
देयर आर मेनी सीट्स वैकेंट हियर, यू कैन सीट. ओके, यहाँ काफी सारी सीट्स खाली हैं, आप बैठ सकते हैं. नेक्स्ट, डू यू नो मिस्टर शर्मा? क्या आप मिस्टर शर्मा को जानते हो? यस आई नो मिस्टर शर्मा. यस आई नो मिस्टर शर्मा. हाँ मैं मिस्टर शर्मा को जानता हूँ. यू नो, यस आई नो मिस्टर शर्मा. हाँ मैं मिस्टर शर्मा को जानता हूँ. ही इज़ माई नेबर एंड ही इज़ अ गुड गाय. वो मेरे पड़ोसी हैं और वो अच्छे इंसान हैं. ही इज़ माई नेबर एंड ही इज़ अ गुड गाय. ही इज़ अ गुड पर्सन. वो एक अच्छे इंसान है. डू यू थिंक ही कैन हेल्प मी? क्या आपको लगता है वो मेरी हेल्प करेंगे? या ही विल श्योरली हेल्प यू. इज अ गुड गाय. निश्चित ही वो आपकी हेल्प करेंगे, वो एक अच्छे इंसान है. सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड जस्ट आंसर इट इन योर ओन वे एंड स्पीक लाइक ए प्रो. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्पीक लाइक ए प्रो. किसकी तरह बोलना है? स्पीक लाइक ए प्रो मीन्स प्रोफेशनली बोलना है यार. भाषा है, इंग्लिश है यार. इंग्लिश इज वेरी ईजी. सबसे पहले क्या करना है? वी हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. वी हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. वी हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले बोलना शुरू करो. लीव ऑल द वर्क एंड नाउ स्टार्ट स्पीकिंग. कोई ग्रामर सीखना नहीं, कोई कुछ नहीं सीखना है. लर्न क्वेश्चंस एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन, नथिंग एल्स. अगर आपका एक ड्रीम है कि सर मुझे है ना मेरी इंग्लिश स्पोकन को सुधारना है, सर मुझे तो सिर्फ इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलना सीखना है, आई डोंट केयर एनीथिंग. Sir, I have to be a confident English speaker. I don't care about grammar. I don't think about any sentence making and all. I just have to improve my spoken English. I would say only one thing: focus on questions. Come on, focus on questions and speak like a pro.